حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، بی بی این خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ ایم آئی ایم کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری کا 72 سال کی عمر میں انتقال۔ حیدرآباد کی سیاست کا ایک عہد ختم۔ سلطان صلاح الدین اویسی کے قریبی رفیق سپرد خاک۔ سیاسی و عوامی حلقوں میں غم کی لہر۔ تلنگانہ میونسپل انتخابات، نامزدگیوں کے بعد 12,900 سے زائد امیدوار میدان میں۔ 11 فروری کو ووٹنگ، مختلف اضلاع میں سیاسی کشیدگی۔ جگتیال کے ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار کو کلین چٹ۔ نااہلی معاملے میں اسپیکر کا بڑا فیصلہ، پارٹی تبدیلی کے الزامات بے بنیاد قرار۔ سنجے کمار بدستور بی آر ایس کے رکن اسمبلی۔ تلنگانہ بلدیاتی انتخابات، پون کلیان کا بی جے پی کے حق میں انتخابی مہم چلانے کا اعلان۔ حیدرآباد میں اہم ملاقاتوں کے بعد پون کلیان کی بی جے پی کو مکمل حمایت۔ کوشک ریڈی تنازع، بی آر ایس قائد شیخ عبداللہ سہیل کی کانگریس پر کڑی تنقید۔ فرقے وارانہ سیاست کا الزام، کہا کانگریس دور 26 ماہ میں 47 فرقے وارانہ واقعات پر خاموش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر سیکرٹری و سابق رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کا 72 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی اور سیاسی قائدین نے ان کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری، سابق رکن اسمبلی اور حیدرآباد کی سیاست کے ایک اہم اور معتبر چہرے سید احمد پاشا قادری کا کل 3 فروری 2026 کو طویل علالت کے بعد حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ 72 برس کے تھے، جس کے بعد سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ مرحوم پاشا قادری اے آئی ایم آئی ایم کے مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی کے قریبی رفیق اور جماعت کے ایک مضبوط ستون سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سیاسی خدمت اور عوام سے گہرے رابطے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے سن 1986 میں حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر کے طور پر سیاسی سفر کا آغاز کیا اور بعد ازاں 2004، 2009 اور پھر 2014 میں چار مینار اسمبلی حلقے، جبکہ 2018 میں یاقوت پورہ سے منتخب ہو کر تقریباً 19 برس تک 4 مسلسل ادوار میں عوام کی نمائندگی کی۔ مرحوم سید احمد پاشا قادری کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر چندولال بارادری مسجد حکیم وزیر علی میں ادا کی گئی، جس کی امامت ان کے بڑے بھائی مولانا سید محمود پاشا قادری زرین کلہ نے کی۔ نماز جنازہ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے ذمہ داران، کارکنان، ٹمرس کے چیئرمین فہیم قریشی، جوبلی ہلز کے ایم ایل اے نوین یادو، سیاسی و سماجی شخصیات اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ بعد ازاں نور خاں بازار میں حضرت سید معین الدین پاشا زرین کلہ کے احاطے میں تدفین عمل میں آئی، جہاں رقت امیز مناظر دیکھنے میں آئے اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آخری دیدار کرتے ہوئے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پاشا قادری کے انتقال پر بیرسٹر اویسی، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، بی جے پی ایم پی ایٹیلا راجندر، بی آر ایس قائدین کے ٹی آر، ہریش راؤ، تلنگانہ جاگرتی کی سربراہ کلوا کنٹھلا کویتا سمیت کئی اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے عوامی خدمات، اقلیتوں کی فلاح اور شہر حیدرآباد کے لیے ناقابل فراموش کردار کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ سید احمد پاشا قادری کی رحلت سے اے آئی ایم آئی ایم اور حیدرآباد کی سیاست میں ایک ایسا قلعہ پیدا ہوا ہے جس کا پر ہونا آسان نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، اس وقت میں جامع مسجد حکیم میر وزیر علی بہادر پورہ میں موجود ہوں۔
عزیزان گرامی قدر، آج بعد نماز ظہر بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت مولانا سید احمد پاشا صاحب قادری زرین کلہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاکھوں مسلمان نماز جنازہ میں شریک رہے اور حضرت سید احمد پاشا صاحب قادری زرین کلہ سابق MLA و معتمد مجلس اتحاد المسلمین کو لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت سید احمد پاشا صاحب قادری زرین کلہ ایک مثالی شخصیت مانی جاتی ہے۔ 50 سال پر محیط ان کی خدمت ملت کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کی محبت کے لیے ایک مثالی زندگی انہوں نے گزاری۔ دن رات ملت کی خدمت کے لیے وہ انہوں نے صرف کیے ہیں۔ ایک مثالی قائد کی حیثیت سے دنیا ہمیشہ اور حیدرآباد ہمیشہ حضرت سید احمد پاشا صاحب قادری کو یاد کرتا رہے گا۔ آپ نے پوری زندگی دین اور سنیت اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں لگائی ہے۔ اللہ تعالی حضرت سید احمد پاشا صاحب قادری زرین کلہ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص عشق رسول کے حوالے سے وہ ایک لاجواب ہستی تھی۔ رات بھر حضور کی نعتیں سنتے تھے، حضور کی محفلیں آباد کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور غوث العظم دستگیر کی ان محافل کے صدقے اللہ تعالی حضرت سید احمد پاشا قادری زرین کلہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ان کے لواحقین کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تلنگانہ کے وزراء اور پارٹی قائدین نے باوقار ہارورڈ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول میں لیڈرشپ ان دا 21st سینچری ایگزیکٹو لیڈرشپ پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مبارکباد پیش کی۔ اس سلسلے میں وزراء اتم کمار ریڈی، ڈی سریدر بابو، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ، پونم پربھاکر، تملا ناگیشور راؤ، سیتکا کونڈا سریکھا، محمد اظہر الدین، وویک وینکٹ سوامی کے علاوہ MLC مہیش کمار گوڑ، وزیر اعلیٰ کے مشیر وی نریندر ریڈی اور سرکاری مشیر سدرشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ قائدین نے عالمی شہرت یافتہ ادارے قیادت سے متعلق اعلیٰ تربیت حاصل کرنے پر وزیر اعلیٰ کی ستائش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس تجربے سے تلنگانہ کی حکمرانی اور ترقیاتی عمل کو نئی سمت اور مضبوط قیادت میسر آئے گی۔ تلنگانہ میں 11 فروری کو شیڈول میونسپل انتخابات کے لیے نامزدگیوں اور ان کے انخلاء کے عمل کے بعد کل 12,993 امیدوار مختلف 2,996 وارڈز میں مقابلے کے لیے بقایا رہ چکے ہیں، جبکہ 6,701 امیدوار نے اپنے نام واپس لے لیے ہیں، جس سے انتخابی لڑائی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور 52.42 لاکھ ووٹرز اپنی حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 13 فروری کو ہوگی۔ یہ انتخابی مرحلہ داخلی پارٹی اختلافات، ٹکٹ کی تقسیم پر مبینہ جھگڑوں اور بعض مقامات پر مبینہ زبردستی انخلاء کے الزامات کے بیچ گزرا ہے۔ مثلاً پیڈاپلی ضلع کے راماگنڈم سے BJP کارکن نے پولیس اور کانگریس رہنماؤں پر دباؤ ڈال کر نام واپس کرانے کا الزام لگایا، جبکہ جگتیال میں کانگریس کے اندرونی اختلافات نے ٹکٹوں کے اعلان کے بعد ناراضگی کو جنم دیا۔ مختلف سیاسی جماعتیں اب اپنی فائنل مہم پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں، جس میں کانگریس، BRS، BJP اور دیگر چھوٹی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، اور پارٹیوں نے باقی رہ جانے والے امیدواروں پر ووٹ تقسیم اور جیت کے امکانات کو بہتر بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، تاکہ میونسپل کارپوریشنز اور مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے مضبوط نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں تعمیل میں کمی اور ڈی ریگولیشن کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت چیف سیکریٹری کے راما کرشنا راؤ نے کی، جبکہ حکومت ہند کی سیکریٹری سکروتی لیکھی بھی اس اجلاس میں شریک رہیں۔ اجلاس میں کاروبار کو آسان بنانے سے متعلق اصلاحات پر تفصیلی غور کیا گیا، جہاں مرکزی حکام نے فیز 1 اصلاحات میں ریاست کے شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ فیز 2 میں بھی تلنگانہ اسی طرح کامیابی حاصل کرے گی، جس میں 23 ترجیحی اور 5 اختیاری شعبے جات شامل ہیں۔ چیف سیکریٹری نے اس موقع پر ریاستی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مقررہ اہداف کو شیڈول سے پہلے حاصل کیا جائے گا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آئندہ بجٹ اجلاس میں ضروری قانون سازی کے اقدامات کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دے، تاکہ ڈی ریگولیشن کے ذریعے سرمایہ کاری، صنعت اور کاروباری ماحول کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
तेलंगाना में अरकान असेंबली की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर असेंबली स्पीकर कडियम प्रसाद कुमार ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जगतियाल के बीआरएस रुकनी असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार को क्लीन चिट दे दी है। स्पीकर ने वाजे किया कि डॉक्टर संजय कुमार के पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक़ कोई ठोस या काबिले एतमाद शवायद पेश नहीं किए जा सके, इसलिए वो बदस्तूर बीआरएस के रुकनी असेंबली बरकरार रहेंगे। इस फैसले के साथ ही नाअहली की दरख्वास्तों में क्लीन चिट पाने वाले बीआरएस एमएलए की तादाद 8 हो गई है, जबकि 2 दीगर अरकान असेंबली के मामला ताहाल स्पीकर के ज़ेरे गौर हैं। वाज़ेह है कि बीआरएस की जानिब से 2024 में डॉक्टर संजय कुमार समेत चंद अरकान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिनमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तहम स्पीकर ने इन इल्ज़ामात को शवाहिद की कमी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वो सिर्फ अपने हल्के जगतियाल की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो आज भी बीआरएस के रुकने हैं। यहाँ तक कि इनकी तनख्वाह से पार्टी फंड के लिए रकम की कटौती भी जारी है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस फैसले को तेलंगाना की बदलती सियासी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఈనాటికి కూడా నేను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఈనాటికి కూడా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే జగిత్యాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నా జగిత్యాల అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేస్తున్నా డేట్ అటు ఇటు జాయట్లేదు ఎందుకంటే నేను పర్టికులర్గా జాయిన్ అవుతుంది పోలేదు కాబట్టి పోయి నేను కలవడానికి పోతే తెల్లవారే ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిన తెల్లవారే ఎలాంటి అథెంటిసిటీ లేని ఆధారాలు లేని మీడియా ప్రచారంతో నేను ఇవ్వలే స్టేట్మెంట్, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వలే, నాతో ఉన్న మంత్రులు ఇవ్వలే, కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి పోయి నేను చాలువ కప్పితే వారు నాకు కండువ కప్పితే నేను కాంగ్రెస్ లో చేరిట్టని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నాయకులు వచ్చి నా హాస్పిటల్ మీద రచ్చ చేసి నా దిష్టి బొమ్మ తలబెట్టారు. నాకు ఒక అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు వివరణ ఇవ్వడానికి, నాకు ఒక నోటీస్ ఇవ్వలేదు. మన కవితమ్మ అదే అడుగుతుంది కదా, నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవగానే వారికి చాలు కప్పితే నాకు కండువ కప్పగానే తెల్లవారంగానే నా ఇంటి మీద దాడి, తహసీల్ చౌరస్తాల దాడి మీరందరూ కూడా చూసిండ్రు. అదే రోజు నా మీద అఫిడవిట్ వేసి డిస్క్వాలిఫై చేయమని చెప్పి స్పీకర్ దగ్గర పిటిషన్ వేసిండ్రు. అయినా కానీ ఆ రోజు నుంచి మార్చి వరకు అది వాళ్ళిచ్చి వాళ్ళు ఆపేంత వరకు బీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీకి నెలకు 5,000 రూపాయలు మా జీతం నుంచి కట్ అయితే నేను ఎన్నడూ అబ్జెక్షన్ చేయలే. నేను బీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీ సభ్యున్నే, నేను అబ్జెక్షన్ చేయలే. నేను అంటున్నారు అఫిడవిట్ ఇచ్చిండు, అఫిడవిట్ వాస్తవమే, అఫిడవిటే కాదు నెలకు 5,000 కట్టినా భయ్. तेलंगाना के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने तेलंगाना में बीजेपी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। ये फैसला मंगल के रोज हैदराबाद में पवन कल्याण की रिहाइशगाह पर मुनाक़द एक अहम मुलाकात के बाद सामने आया, जिसमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव शरीक थे। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात समेत मुख्तलिफ अहम सियासी उमूर पर तफसीली और तबादले ख्याल किया गया, जिसके बाद पवन कल्याण ने बीजेपी की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए 7 और 8 फरवरी को तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बीजेपी और जनसेना बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने पर आमादगी जाहिर की। रामचंद्र राव के मुताबिक पवन कल्याण की शमूलियत से तेलंगाना में बीजेपी की सियासी रफ्तार को मजीद तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह है कि रियासत में 11 फरवरी को 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 116 बल्दियात में रायदही होगी, जबकि नताइज का ऐलान 13 फरवरी को किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी तेलंगाना में अपनी सियासी अहमियत बरकरार रखने के लिए पवन कल्याण का सहारा ले रही है, जबकि माजी में पवन कल्याण की जानिब से तेलंगाना के खिलाफ नाजेबा और तौहीन आमेज रिमार्क्स भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बाशऊर वोटर्स पवन कल्याण की इंतखाबी अपीलों से मुतासिर नहीं होंगे। टीपीसीसी सदर ने इस बात का भी पूरा एतमाद अंदाज में इजहार किया कि आने वाले बल्दी इंतखाबात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी शानदार और फैसला कुन कामयाबी हासिल करेगी और रियासत में बीजेपी की सियासत को अवाम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देगी।
మొత్తం కాంగ్రెస్ గెలిచే పరిస్థితి కాబట్టి ఇవాళ బీజేపీ నాయకులకు అది అవగతమై పవన్ కళ్యాణ్ని ఆశ్రయించినట్టు తెలుస్తూ ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి, తెలంగాణ భాష యాస గురించి, తెలంగాణ నడవడి గురించి, తెలంగాణ వారి గురించి కొంచెం విమర్శలు చేసినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ని వారు చెప్పే మాటల్ని నమ్మరుగాక నమ్మరు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది. 90-95% కార్పొరేషన్లు, మున్సిపల్ మేమే గెలుచుకుంటా ఉన్నాం. బీజేపీ ఉనికి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ని ఆశ్రయించినట్టు కనబడతా ఉంది. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी को यकीनी करार देते हुए दावा किया है कि पार्टी 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 90 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज पर भारी अक्सरियत से इख्तियार हासिल करेगी, जबकि नलगुंडा कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। इसके साथ साथ सनसनीखेज रिमार्क्स में कहा कि केसीआर नहीं बल्कि तेलंगाना के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले ही असल बाबाए कौम हैं, जबकि सोनिया गांधी को उन्होंने तेलंगाना की देवी करार दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर का तेलंगाना तहरीक में रोल जरूर रहा है, मगर बाबाए तेलंगाना होने का दावा हकीकत के मुनाफी है, क्योंकि खुद उन्होंने अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी ही कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखाई, वजारत से इस्तीफा दिया और तहरीक में कुर्बानियां दी। कोमटिरेड्डी ने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में अवाम पहले ही बीआरएस को मुस्तरद कर चुके हैं और बल्दी इंतखाबात में भी बीआरएस का वही हश्र होगा, यहाँ तक कि आइंदा असेंबली इंतखाबात तक तेलंगाना में इस पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना में मुबैना रेवंत बेनामी स्कैम का इल्जाम आयद किया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुबैना तौर पर मुंसलिक KLSR इंफ्रा कंपनी को कवायद के बरखिलाफ तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके दिए गए। हालांकि कंपनी दिवालियापन के मुकदमे का सामना कर रही है और मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ चुकी थी। KTR के मुताबिक 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की, जिसके बाद असल मामले से तवज्जो हटाने के लिए SIT तहकीकात के नाम पर डाइवर्शन पॉलिटिक्स की जा रही है। बीआरएस का दावा है कि 2018 की IT कार्रवाइयों में KLSR और वज़ीर आला के करीबी अफराद से मुंसलिक कंपनियों के दरमियान माली लेन देन के शवाहिद मिले थे, जबकि अदालती दबाव के इल्जामात भी सामने आए हैं। KTR ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस मामले की CBI, ED या SFIO से जांच कराई जाए। KLSR को दिए गए तमाम ठेके मनसूख किए जाएं और तहकीकात मुकम्मल होने तक कंपनी को ब्लॉक लिस्ट किया जाए। వారం 10 రోజులుగా ముఖ్యంగా జనవరి 22-23 తర్వాత వరుసగా ఏకబిగిన మొదలు హరీష్ రావు గారిని, తర్వాత నన్ను, ఆ తర్వాత రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు సంతోష్ గారిని, తర్వాత మా అధినాయకుడు కేసీఆర్ గారిని వరుసగా విచారణకు పిలిపిస్తే మాకు అప్పుడే ఏదో అనుమానం వచ్చింది. ఇదేదో డైవర్షన్ గేమ్ బాగానే సీరియస్గానే ఆడుతున్నారు, ఎందుకు ఆడుతున్నారు, ఇంత హడావుడిగా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాకు డౌట్ వచ్చింది. ఆ డౌట్ వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా తవ్వడం మొదలుపెట్టాం. ఏది కవర్ చేయడానికి, ఎందుకోసం ఈ కవర్ డ్రైవ్లు, ఎక్స్ట్రా కవర్ డ్రైవ్లు అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దొరికింది మాకు ఒక పెద్ద ఫ్రాడు, ఒక పెద్ద ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ భాగోతం ఒకటి బయటపడ్డది. ఇది జనవరి 23 నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. KLSR అనే ఒక కంపెనీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ కంపెనీ. KLSR ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ కంపెనీ. నేను ఏదో ఊరికే అనట్లేదు, అది దానికి ఆధారాలతో సహా ఇప్పుడే మీకు చూపెడతాను. ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్పంగానే కొన్ని ఛానళ్ళు లైవ్ కట్ చేస్తాయి, అది కూడా నాకు తెలుసు, పర్వాలేదు. అయినప్పటికీ ఈ KLSR ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దాని భాగోతం బయటపడి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. వెంటనే మరి ఈ దివాలా తీసిన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో 6,000 కోట్ల రూపాయల వర్కులు వీరికి దివాలా తీసిన సమయంలోనే, స్పష్టంగా నేను చదువుతాను, మీరు వినండి. ఏం రాశారంటే, సెంటర్ అండ్ తెలంగాణ గెట్ సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ ఫర్ KLSR ఇన్ఫ్రాటెక్స్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఫ్రాడ్. The company allegedly secured
government tenders worth approximately rupees 6,000 crore during the insolvency period without the authorization of interim resolution professional. IP professional ఇది లేకుండా అనుమతి లేకుండా 6,000 కోట్ల టెండర్లు తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు. మరి ఎక్కడికి వచ్చినాయి ఈ ప్రాజెక్టులను మాకు కూడా అనుమానం వచ్చింది. ఎక్కడొచ్చినాయి ఆ ప్రాజెక్టులు అంటే మొత్తం తెలంగాణ. पीआरएस के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने एमएलए कौशिक रेड्डी के रिमार्क्स पर पैदा शुदा तनाज़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस कायदीन बल्दी इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए जानबूझकर इन्हें फ़िरका परस्त लीडर के तौर पर पेश कर रही है, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखने के काबिल नहीं रही। उन्होंने वादे किया कि कौशिक रेड्डी ने ना मुसलमानों के खिलाफ कोई गाली दी और ना ही कोई तौहीन आमेज बयान दिया, बल्कि वो हमेशा सेकुलर नज़रिए के हामिल रहे और मजहबी सियासत से दूर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने सवाल उठाया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ा बयान पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई, जबकि उस वक्त एक मुस्लिम MLC भी मौजूद थे। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के 26 माह के दौरे हुकूमत में 47 फ़िरक़े वाराना वाक़यात पेश आए मगर कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुतनाज़ा MLA राजा सिंह के मुसलसल इस्लाम मुखालिफ बयानात पर भी मुजरिमाना खामोशी रही, जिससे कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी बेनकाब होती है और अवाम बल्दी इंतखाबात में इसका भरपूर जवाब देंगे। असल बात पर्दे के पीछे की ये है कि रेवंत रेड्डी की कौशिक रेड्डी से शुरू से नहीं बनती। हुजूराबाद का इलेक्शन जब आया था, जब ये PCC थे, उसी टाइम से शुरू हो गई। कौशिक पार्टी छोड़कर चले गया और जब जब मौका मिला कौशिक रेड्डी रेवंत रेड्डी के खिलाफ जो भी उसको मुद्दा मिलता है वो उठाता जरूर है। अब रेवंत रेड्डी को खुश करने के वास्ते कुछ लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में जाने के वास्ते पार्टी के पास कोई काम, कोई ऐसा मिडिल नहीं है जो अवाम के सामने जाके बोले कि भाई हम ये वादे पूरे कर चुके हैं, वोट दियो। लिहाजा ये मुद्दे को उठाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बोलने लगा रही। मैं आप सबसे कहता हूं, अवाम से पूछता हूं, जुबली हिल्स के बीच इलेक्शन में रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस से मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, तब पूरे खामोश। वो भी एक MLC, मुस्लिम MLC के सामने बाजू ठहर के बोलते हैं, सब खामोश। मैं आपके जरिए पूछना चाह रहा हूं कि ये 26 महीने की गवर्नमेंट में 47 के आसपास कम्युनल राइट्स हुए, पूरे खामोश। राजा सिंह गुस्ताखी करते जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, पूरे मुसलमान लीडर खामोश। और जो मुद्दा ही नहीं है, एक शख्स अपनी धर्म यात्रा में जा रहा, उसको रोका, उन्हें गुस्से में आकर अगर से टुकड़ू रोका बोले तो उसमें गलत क्या था, एक गुस्से में बोला, माफी मांग लिया, उसको अलग अलग तरीके से परेशानी। कौशिक रेड्डी की पूरी सियासत उठा के देख लो, उन्हें कम्युनल पर सियासत करा ही नहीं, कम्युनल कभी उसकी सियासत रही नहीं। उसको IPS ऑफिसर एक अलग मुद्दा, एक अलग रंग दे रहे, कन्वर्ट करना चाह रहा कौशिक बोल के एक अलग दे रहे, जबकि वो खुला चैलेंज करता है कि मैं ये कन्वर्ट करने की बात अगर से बोला है तो बोलो, मैं पूरी पॉलिटिक्स छोड़ देता हूं, MLA से रिजाइन करता हूं, खामोश। मैं आपके जरिए आपकी आवाम, हमारी आवाम से पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस सरकार है, ये अपने वादे करेंगी, अपने वादे पे वोट मांगेंगी, अपने वादे पे आपके पास आएंगी? बिल्कुल नहीं। इनको कुछ ना कुछ एक मुद्दा होना जिसके जरिए जो है आवाम को गुमराह करना। और मैं ये यकीन से कहता हूं कि तेलंगाना की आवाम बहुत समझदार आवाम है। रेवंत रेड्डी, तुम कुछ भी हरबे कर लो, वो तुमको 2.5 साल में तुम्हारी जगह बता देंगे। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वजीर T हरीश राव ने जिले महबूबाबाद के अंगारती रेसिडेंशियल कॉलेज में ज़ेरे तालीम इंटर की तालिबा अशमीता को सांप के काटने के वाक़यात अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि गरीब तालिबा इस वक्त ज़िंदगी और मौत के दरमियान जद्दोजहद कर रही है और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए
तालिबा को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करें। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि रेजिडेंशियल स्कूल्स और गुरुकुल इदारों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जहां कभी सांप, कभी कुत्ते और कभी नाकिस ग़िज़ा के बायस तलबा की जानें खतरे में पड़ रही हैं और माजी में ऐसे कई वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास तालीम का कलमदान होने के बावजूद गुरुकुल इदारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि 20,000 करोड़ रुपए के इंटीग्रेटेड स्कूल्स के ऐलानात किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हरीश राव ने कहा कि वालिदीन में ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि आया वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज रहे हैं या मौत के मुंह में, और अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर नींद से बेदार होकर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए तो BRS बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी। नामपल्ली में वाक़े फर्नीचर स्टोर में पेश आए अफसोसनाक आतिशबाज़ी के वाक़े के बाद हाइड्रा ने शहर भर में फायर सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 3 फरवरी को शुरू की गई इस मुहिम के तहत अवाम और तिजारती इदारों को आग से बचाव के इक़दामात, जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल के तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया गया। इस दौरान आग बुझाने वाले के इस्तेमाल, बग़ैर इंसानी मदाखलत के आग बुझाने वाले वाटर स्प्रिंकलर्स और स्मोक डिटेक्टर्स के अमली मुजाहरे भी पेश किए गए। हाइड्रा ने इससे कबल फायर सेफ्टी उसूलों के खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानों को सील किया था, जबकि दुकानदारों को हिफाजती मियारात पर अमल के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि फायर सेफ्टी हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है, खुसूसन गर्मियों के मौसम में एहतियाती तदाबीर निहायत ज़रूरी है। ये आगाही प्रोग्राम पंजागुट्टा, मुतुगुड़ा, कुरून, चंद्रायन गुट्टा, माधापुर, गच्चीबौली, दिलसुख नगर, बंजारा हिल्स, नामपल्ली, शमशाबाद समेत दिगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनाक़ाद किए गए, जबकि आवाम से अपील की गई है कि किसी भी फायर सेफ्टी खिलाफ वर्जी की इत्तला हाइड्रा कंट्रोल रूम या फायर ब्रिगेड 101 पर फौरी तौर पर दें। అందరికీ నమస్కారం। ఈ మధ్య మీ అందరూ చూశారు, హైడ్రా, జిహెచ్ఎంసి, ఫైర్ డిపార్ట్మెంటు అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అందరం కూడా ఒక సమన్వయంతో ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏదైతే నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్లో అయిన తర్వాత మేమంతా కూడా ఫైర్ తనిఖీలు, సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఆడిట్ చేయటము, దాని తర్వాత కొన్ని బిల్డింగ్స్ని కూడా సీజ్ చేయటము అయినా కూడా మీరు చూశారు. దాదాపు అరౌండ్ 9 బిల్డింగ్స్ దాకా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చాలామంది వ్యాపార వర్గాల నుంచి, ఇతర అసోసియేషన్స్ నుంచి, అన్నిటి నుంచి కూడా మాకు అందరికీ రిక్వెస్ట్లు రావటం జరిగింది. రిక్వెస్ట్లు ఏంటంటే, నోటీస్ ఇవ్వకుండా సీజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా అది కరెక్టే చేస్తున్నారు, కానీ మేము చాలామంది ఇప్పటికే చాలా వ్యాపారస్తులంతా కూడా సామాన్లంతా కూడా తీసుకొచ్చి హోల్డ్ చేస్తున్నాము. సో దాన్ని అట్లీస్ట్ తరలించడానికి కొన్ని మేము వేరే గోడౌన్స్ లేదా ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ చూడటానికి మాకు కొంత టైం ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి వ్యాపార వర్గాల అందరి దగ్గర నుంచి కూడా మాకు రిప్రజెంటేషన్స్ రావడంతో అప్పుడు ఆ మీటింగ్లో మేము హైడ్రా అధికారులు, జిహెచ్ఎంసి, ఎలక్ట్రిసిటీ అధికారులు, నెక్స్ట్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫైర్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఆ మీటింగ్లో అటెండ్ అయిన తర్వాత ప్రభుత్వ సూచనలకు అనుగుణంగానే మేము కూడా అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళకు ఒక 1 month టైం ఇస్తూ ఫిబ్రవరి నెలంతా కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెంచేదానికి, దీంతో పాటు వాళ్ళు అంతా కూడా ఏదైతే గనక వాళ్ళ ఈ సెల్లార్స్లో కానీ ఇవన్నీ డంప్ చేసిన వాటిని అన్నిటిని కూడా తరలించడానికి వాళ్ళకి టైం కూడా ఇచ్చినట్టుగా కూడా అని చెప్పేసి వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడటం, ఆ డెసిషన్ కూడా మీ అందరూ పేపర్లో చూశారు. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में सड़कों पर महफूज तर्ज अमल को फरोग देने की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने रोड सेफ्टी बुलूच वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इस ऑनलाइन इक़दाम के जरिए रियासत के हर 2 पहिया गाड़ी मालिक तक फील्ड सतह पर पहुंचने का हदफ रखा गया है, जहां डिजिटल प्लेज सर्टिफिकेट के जरिए अवाम में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने तलबा को वालिदीन के साथ मिलकर रोड सेफ्टी का हलफ लेने की तरकीब देते हुए कहा कि ख़ानदानी सतह पर आगाही मुहिम सड़क हादसात और अमवात में नुमाया कमी ला सकती है। वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों की हिफाजत एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, मुसलसल बेदारी ही महफूज सफ़र की ज़मानत बन सकती है। इस प्रोग्राम में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एलम्बर्ती, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्रशेखर गौड़ और शिवलिंगैया, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रुकन नवीन पटनम समेत
दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद में GHMC के इंजीनियरिंग विंग में मुबैना बदउनवानी का एक बड़ा मामला मंजर आम पर आया है, जहां कुकटपल्ली के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर P चिन्ना रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मुलजिम अफसर ने तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बिल मंजूर करने के अवज़ कॉन्ट्रैक्टर से भारी रकम का मुतालबा किया था। ACB की कार्रवाई के बाद चिन्ना रेड्डी को मुअत्तल किया जाने तय समझा जा रहा है। इस मामले में वीडियो में नजर आने वाला दूसरा शख्स B प्रवीण कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर बताया गया है, जो मुबैना तौर पर चिन्ना रेड्डी के लिए बतौर जरिए काम कर रहा था। इस वाक़े ने GHMC के इंजीनियरिंग शोबे में मुबैना करप्शन के संगीन इल्जामात को एक बार फिर तक़वियत दे दी है। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद के ज़ेरे एहतमाम आज बजोरे चारशंबा एक बड़े इंतखाबी जलसे आम मुनाक़द किया गया, जो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहा, जिसमें सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करते हुए आवाम से खिताब किया। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने दौरे आदिलाबाद के दौरान डाइट कॉलेज ग्राउंड का मुआयना करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि आइंदा मजलिस पार्टी भारी आदिलाबाद में भारी अक्सरियत पर कामयाबी हासिल करेगी। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आदिलाबाद के कई इलाकों का दौरा किया, अवाम से डोर टू डोर जाकर मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के टाउन सदर नज़ीर अहमद, एतमाद स्टाफ रिपोर्टर शाहिद अहमद तवक्कल, हैदराबाद से मजलिस के कॉरपोरेटर्स मिर्जा सलीम बेग, शफाहत वासिउद्दीन समेत मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। आरमूर शहर के 20वीं वार्ड के साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्नान ने कांग्रेस पार्टी के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्जाम आयद किया कि पार्टी ने टिकट देने का वादा करने के बावजूद बी फार्म के मरहले पर हल्के असेंबली के कांग्रेस इंचार्ज रेड्डी ने हाथ खींच लिए, जिससे इन्हें सख्त सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 20वीं वार्ड में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए और कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों को घर घर पहुंचाया। इसके बावजूद जीत यकीनी होने के बावजूद टिकट ना देना नाइंसाफी है। शेख मन्ना ने दावा किया कि वार्ड के अवाम इनके साथ मजबूती से खड़े हैं और मुकामी अफराद की दरख्वास्त पर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, जबकि अवाम ने इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कांग्रेस पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अब अवाम का पार्टी से एतमाद उठ चुका है और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़कर कांग्रेस क़ियादत को सबक सिखाएंगे। मैं 20 वार्ड से मेरा बैट का निशान है। बैट के निशान को आप लोग 20 वार्ड में मेरे को कामयाब कराना, आप लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम करने वाला हूँ, आधी रात को तुम लोग फ़ोन करेंगे तो मैं आके फ़ोन काम करने वाला हूँ। ये गली में आज इससे पहले भी मैं हुकूमत में था तो फिर भी रोड़ा लाया, अभी भी हुकूमत में था, कांग्रेस हुकूमत में भी था तो आया, TRS में भी था तो मैं रोड़ा काम कराया, इससे 1 रुपया लिया नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का से लिया ना, किसकन से लिया, मैं काम होना मेरे को गली का होना बोल के मैं काम कराया, डेनी जगह काम कराया, रोड़ा का काम कराया, जो गलिया में जो शादी मुबारक आता था शादी मुबारक दिलाया, जिसको पेंशन नहीं थे पेंशन दिलाया, जिसको राशन कार्ड आज राशन कार्ड आ रहे थे गरीबों को राशन कार्ड दिलाया। मैं वाइस चेयरमैन रह के मेरे को आज टिकट नहीं दिए तो कौन सा इंसाफ है कांग्रेस का। यूथ कांग्रेस के सदर विजय अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी के बाद कायदीन पर पैसे के अवीज बल्दी टिकट फरोख्त करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। आरमूर के प्रेस क्लब में यूथ कांग्रेस कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने गुज़िश्ता 3 बरसों से आरमूर शहर में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अनथिक मेहनत की, मगर इसके बावजूद नए शामिल होने वाले लीडरों को टिकट देना सरासर नाइंसाफी है। इस मौके पर वार्ड नंबर 13 के आजाद उम्मीदवार ने भी कांग्रेस क़यादत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि पार्टी पर भरोसा करके कामयाब किया गया, लेकिन अब कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। विजय अग्रवाल ने खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में रहेंगे और बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूथ कांग्रेस के मुतअद्दिद कायदीन और कारकुनान मौजूद थे।
విజయన్న కానీ లక్ష్మణన్న కానీ రమణన్న కానీ ఇంకెందరో వ్యక్తులకి కూడా ఆ పార్టీ అన్యాయం చేయడం జరిగింది. దీనికి గల కారణాలు ఏంటో మీరు కూడా మీడియా ముఖంగా వచ్చి తెలియజేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మరియు ఇప్పటికీ కూడా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసినా కానీ పార్టీకి వ్యతిరేకం కాదు, ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు, మేము మరి గెలిచి చూపిస్తాం. కాబట్టి వినయన్న ఇంకొకసారి కనుక పార్టీని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతుందని తెలిస్తే ఇక్కడ ఎవరెవరికైతే అన్యాయం జరిగిందో వాళ్ళందరూ వచ్చి మేము ఇక్కడ మాట్లాడతాం. మేము ఇండిపెండెంట్గా గెలిచి చూపిస్తాం. గెలిచినాక కూడా మీరు మాకు ఏదైతే ఓటమి చూపించారో దానికి మా గెలుపుతో మీకు సమాధానం చెప్తాం. మరియు ఈ ఎలక్షన్స్ ముగిసిన తర్వాత దీన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాం. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నమ్మి పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగించిన వ్యక్తి, అలాంటిది పార్టీని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి మీరు ఈరోజు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు. మిమ్మల్ని నమ్మి మేమందరం పార్టీని బలపరచడం జరిగింది. అలాంటి మాకు మీరు చేసిన అన్యాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని మా గెలుపుతో సమాధానం చెప్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి విజయన్న గారికి మరియు ఎంతోమంది పార్టీ కోసం కృషి చేసినటువంటి వాళ్ళకి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. जिले जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात 2026 के सिलसिले में आज जहीराबाद म्युनिसिपल दफ्तर में मुकाबला करने वाले तमाम काउंसिलर उम्मीदवारों का एक अहम इजलास मुनअक़द हुआ, जिसमें असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की मौजूदगी में उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कवायद व ज़वाब्त और रहनुमाना हिदायत से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। इजलास में वादे किया गया है कि हर उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात का मुकम्मल और दुरुस्त रिकॉर्ड रखना और मुकर्ररा वक्त में जमा कराना लाजमी है। बसूरत दिगर किसी भी खिलाफ वर्जी या गलत बयानी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर उम्मीदवारों ने अपने सवालात भी पेश किए, जिनकी तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए। बाददा मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एम शिवा, फाइलिंग स्क्वाड इंचार्ज बी राज रेड्डी, मास्टर ट्रेनर तुलसी राम राठौर और डी श्रीनिवास ने इंतखाबी निगरानी और अखराजात से मुताल्लिक तफसीलात बयान किए। मेरा नाम शिवा है। मैं इधर का जहीराबाद म्यूनसिपलिटी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हूँ। मेरा ऑफिस म्यूनसिपल ऑफिस में रहते, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑफिस रहते। कंटेस्टिंग कैंडिडेट 1 लाख के इलेक्शन कमीशन से 1 लाख खर्च के लिए 1 लाख खर्च कर सकते। वो भी इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट न्यू अकाउंट को खोल के उसमें से उनका एक्सपेंडिचर उसमें से ही दिखाना पड़ता हमारे को। और एक कैश देना बोले तो 5000 अंदर का कैश ही यूज़ कर सकते। 5000 से ज़्यादा हुए तो उन चेक नहीं तो यूपीआई पेमेंट कर सकते। और एक ओरिजिनल बिल्स उन खर्च करते ना, उनका ओरिजिनल बिल्स हमारे को सबमिशन करना पड़ता। और एक व्हीकल का परमिशन लेना बोले तो इधर कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर देते उधर। और एक मीटिंग का परमिशन होना बोले तो डीएसपी साहब दे सकते, उधर अप्लाई करना पड़ता उन। आदिलाबाद में शब बारात निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मंगल की शब इस मौके पर मसाजिद में खुसूसी महाफिल शब बेदार और इबादत का एहतमाम किया गया, जहाँ फर्जंदान इस्लाम ने नवाफिल, तस्बीहात, तिलावत कुरान, जिक्र इलाही, हुस्न क़रात, हम्द व नात और दुर्द सलाम की बाबरकत महाफिल में शिरकत की। इस रात इबादत गुजारों ने रब कायनात के हुजूर सजदा रेज होकर तौबा व इस्तग़फ़ार, गुनाहों से नजात, आमाल की इस्लाह, रिज़्क़ हलाल में बरकत, सेहत व तंदुरुस्ती और दीगर दुआएं मांगी। शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने कब्रिस्तानों का रुख करके अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत की, जबकि मसाजिद में रात भर नमाज व इबादत का सिलसिला जारी रहा। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आदिलाबाद पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। अख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी का 72 साल की उम्र में इंतकाल। हैदराबाद की सियासत का एक अहद ख़त्म। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के करीबी रफ़ीक सुपुर्दे खाक। सियासी व अवामी हलकों में गम की लहर। तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात नामजदगियों के बाद 12,900 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 11 फरवरी को वोटिंग। मुख्तलिफ अजला में सियासी कशीदगी।
जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार को क्लीन चिट, नाअहली मामले में स्पीकर का बड़ा फैसला, पार्टी तब्दीली के इल्जामात बेबुनियाद करार, संजय कुमार बदस्तूर बीआरएस के रुकने असेंबली। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात, पवन कल्याण का बीजेपी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। हैदराबाद में अहम मुलाकातों के बाद पवन कल्याण की बीजेपी को मुकम्मल हिमायत। कौशिक रेड्डी तनाज़ा, बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल की कांग्रेस पर कड़ी तनकीद, फिरके वाराना सियासत का इल्जाम, कहा कांग्रेस दौर 26 माह में 47 फिरके वाराना वाक़ियात पर खामोश। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।